we will start today's session, and today we are taking travel agency and tour operations. Last time we discussed the unit first, in which we talked about the evolution of travel agency. We also discussed the difference between a travel agent and a tour operator. And we also talked about e-travel agencies. Today, we are going to take functions of a tour operator and functions of a travel agent. Right? So, before I come to the functions of a tour operator, I would like to let you know that there are various types of tour operators. Tour operators can be inbound tour operators. Tour operators can be outbound tour operators. Tour operators can be domestic tour operators. Tour operators can be ground tour operators as well. Right? जी सर। तो इसमें जब हम इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स की बात करते हैं, इनबाउंड टूरिज्म तो आपको पता है किसे कहते हैं? यस सर। क्या होता है इनबाउंड टूरिज्म? जो आउटसाइड कंट्री से अपनी कंट्री में आते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। तो इसलिए जब हम टूर ऑपरेटर की बात करते हैं, इनबाउंड टूर ऑपरेटर की, तो वो टूर ऑपरेटर हैंडल करता है वो टूरिस्ट ट्रैफिक जो एक फॉरेन कंट्री से उसकी कंट्री में आया हो। ओके सर। ओके, क्योंकि जब हम टूर ऑपरेटर की बात करते हैं, वो तो पिछली बार भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया, आज फिर से बताऊंगा कि टूर ऑपरेटर इज एक्चुअली it is an organization which buys individual travel components, separately from their suppliers and combines them into a package tour. So what they do actually, they buy individual travel components. For example, accommodation they will buy from a hotelier. They will buy accessibility from an airline or from railways. They will buy amenities from any other source. So they buy individual travel components from different suppliers and then they combine them into a package, and that package they sell either of their own or they make use of some middlemen. Middlemen here become travel agency. ट्रैवल एजेंसी का ये यूज कर सकते हैं। तो दैट इज टूर ऑपरेटर। अगर आपका थोड़ा अपना जो है ना, आपका माइक्रोफोन वो इस वक्त म्यूट कीजिए क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ आवाजें आ रही। ओके, तो ये जो है, ये टूर ऑपरेटर की डेफिनेशन मैंने आपको अभी बताई। तो इसी के बेसिस पे जो इसका नेचर ऑफ वर्क है टूर ऑपरेटर का,
इनकी क्लासिफिकेशन होती है एज इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स, आउटबाउंड टूर ऑपरेटर्स, डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स and ground tour operators. And right now we are discussing the inbound tour operator. Inbound tour operator handles the inbound traffic to the country. For example, there is a group of tourists coming to India from Singapore or from any other country. They are coming to India, and in India that traffic is handled, say by TCI. TCI Limited is a tour operator in India. Say now TCI is handling the inbound operations in the country. So that TCI becomes inbound tour operator because it is handling the traffic of such tourists who are coming to the country from abroad. Okay, this is about inbound tour operator. After that, we come to another type of tour operator, that is outbound tour operator. What is outbound tourism? Resident goes to foreign countries. Okay, good. That is the tourism when a tourist leaves his country of origin to visit some other country, isn't it? Can you give any example of outbound tourism from Kashmir? कोई एग्जाम्पल आप दे Kashmiri सकते हैं? goes to कश्मीर से जो आउटबाउंड टूरिज्म जाता है. Saudi Arab. वेरी गुड. जैसे कि हज एंड उम्रा, यहाँ से वो आउटबाउंड टूरिज्म है, isn't it? Because tourists are leaving from Kashmir to Saudi Arabia mostly for the purpose of performing Hajj or Umrah. But that is an outbound tour for a tour operator from Kashmir. Now the people who are in tourism business from Kashmir and operate Hajj and Umrah packages are outbound tour operators. They are outbound tour operators because they are promoting, operating tours for foreign destinations. It may be for the purpose of pilgrimage, it may be for the purpose of leisure, it may be for the purpose of business, or it may be for any other purpose. So the tour operator who handles this type of tourism is called outbound tour operator. So then we come to another type of tour operator, that is a domestic tour operator. That is a domestic tour operator. मोहसिन, आप माइक्रोफोन अपना ऑफ कीजिए, जब आपको रिप्लाई करना होगा उस वक्त आप फिर से ऑन कर सकते हैं, क्योंकि वहां से बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है, वो डिस्टर्ब. हाँ बिल्कुल. जब आपको आंसर देना होगा क्वेश्चन का, दैट टाइम यू कैन अगेन स्विच इट ऑन एंड देन यू कैन अगेन स्विच इट ऑफ. So we are talking about domestic tour operators. Domestic tour operators are those who assemble, combine tourist components into inclusive tours and sell it to the domestic travelers. तो यहां पे मैं आपसे पूछूंगा, डोमेस्टिक टूरिज्म किसे कहते हैं?
Now anybody who wants to answer can switch on, can unmute the microphone and reply. डोमेस्टिक टूरिज्म हम किसे कहते हैं? जो अपनी कंट्री में एक स्टेट से दूसरी स्टेट, बिल्कुल, जहां पे बॉर्डर्स ऑफ कंट्रीज क्रॉस न हो, चाहे आने में चाहे जाने में, दैट इज डोमेस्टिक टूरिज्म। तो वो टूर ऑपरेटर्स जो ऑपरेट करते हैं टूर्स, लेकिन उसी कंट्री के अंदर, न उसमें कहीं और कंट्री से कोई आता है, न यहाँ से कोई और कहीं जाता है, बल्कि अपनी ही कंट्री के अंदर वो टूर्स होते हैं। तो दैट इज द जॉब ऑफ ए डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर, because the domestic tour operator operate within the boundary of the home country and offer package tour to the travelers, namely domestic inclusive tours or independent tours. So this is how a domestic tour operator is managing his or her business. अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं, जैसे इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की एक नेशन वाइड कैंपेन चल रही है, दैट इज इन द नेम ऑफ देखो अपना देश। दैट इज अ कैंपेन अंडर इनक्रेडिबल टूरिज्म, and in which the citizens are asked to take a pledge to visit a particular number of destinations up to 2022. 2 साल में आपको इतनी destinations visit करनी है अपनी कंट्री में। लेकिन तो उसका मकसद है कि लोग अपनी कंट्री को जाने, पूरी तरह से कल्चरल डाइवर्सिटी को समझे और पूरी तरह से वाकिफ हो कि अपने मुल्क में क्या है। तो अब ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट बन जाएगा डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स के लिए, बिकॉज दिस कैंपेन विल बूस्ट टूरिज्म इन द डोमेस्टिक सेक्टर। क्योंकि यहाँ पे जब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ऐसा स्टेप उठाया, देखो अपना देश का स्टेप, वो इसलिए उन्होंने उठाया क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग अपनी कंट्री में ज़्यादा ट्रैवल करें। क्या चाहते हैं? कि लोग अपनी कंट्री में ज़्यादा ट्रैवल करें। उससे क्या होगा? उससे जो टूरिज्म है, जो टूरिज्म की इकोनॉमी है, उसका बेनिफिट कंट्री में ज़्यादा आ जाएगा। तो इसीलिए दैट इज़ द रीज़न वाई दैट अंडर इनक्रेडिबल इंडिया a campaign in the name of देखो अपना देश has been started, and in that a citizen is asked to take a pledge. Pledge means एक किस्म का अहद करना, कमिटमेंट करना, to take a pledge of visiting at least 15 tourist places by the year 2022. That means उसमें उसको ये प्लेज करना है, ये वादा करना है कि मैं 2 सालों में कम से कम 15 डेस्टिनेशंस देखूंगा अपने मुल्क की। 15 डेस्टिनेशंस ऑफ ओन कंट्री, कम से कम 15 से ज़्यादा भी देख सकता है, लेकिन कम से कम उसमें
उसको 15 डेस्टिनेशंस देखने का प्लेज करता है। तो इसमें गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयज़ को भी काफ़ी मतलब रिलैक्सेशंस दी हैं एलटीसी फॉर्म में, लीव ट्रैवल कंसेशन और कुछ स्कीम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस का बेनिफिट उठाए और अपने मुल्क को देख ले। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है अब डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स के लिए, क्योंकि जब किसी को अब इतनी जगह देखनी है और बहुत सारे लोग इस कैंपेन में प्लेज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स इट इज़ अ बिग स्कोप फॉर अ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर. Domestic tour operators can offer packages so that they can tap this market segment. तो मैं आपको ये बता रहा था कि इसका जो इस कैंपेन का जो मकसद था वो ये है कि लोग अपनी कंट्री में ज़्यादा ट्रैवल करें। अदरवाइज एक ट्रेंड सेट होती कि लोग फॉरेन टूर्स ज़्यादा करते। सपोज फॉर एग्जांपल किसी को ट्रैवल करना है और उसको ट्रैवल करने के लिए उसने 1 लाख रुपया रखा है बजट घूमने के लिए फॉर एग्जांपल, नहीं तो मे बी वो 1 लाख रुपया बैंकॉक जाता, सिंगापुर जाता, और उससे क्या होता, वो 1 लाख रुपया मुल्क से बाहर निकलता, क्योंकि वो सिंगापुर के होटेलियर को बेनिफिट मिलता, वो सिंगापुर के ट्रांसपोर्टर या जिस भी कंट्री को वो विजिट करता। तो अगर वही 1 लाख ये डोमेस्टिक टूरिज्म पे खर्च करेगा, सपोज ये एक स्टेट से गया, गुजरात से आया कश्मीर या और किसी जगह गया, तो उसने यहाँ के होटल में ये पैसा खर्च किया, यहाँ के शिकारी वाले की शिकारा राइड पे पैसा खर्च किया, यहाँ की जो इनोवा है वो यूज़ की और उस पर पैसा खर्च किया, तो ये पैसा सपोज एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आया, तो ये इकोनॉमी कंट्री की ही डेवलप होगी इससे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी जो वीक है कंपेयर टू अदर कंट्रीज जो एफर्ट कर सकते हैं फॉरेन ट्रैवल, जैसे कि यूएस यूरोप में तो वो प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन गो टू अदर कंट्रीज, लेकिन a place like India where people can spend this money in their own country so that the economy of the country will develop accordingly. So that is the reason why this Dekho Apna Desh pledge has been started. So what I mean to say here is that it is a scope for that type of tour operators which are engaging in their business in the domestic sector. So that is a big scope for domestic tour operators. तो उसके बाद हम बात करते हैं चौथे टाइप ऑफ टूर ऑपरेटर्स की। चौथा टाइप ऑफ टूर ऑपरेटर्स है दैट इज ग्राउंड ऑपरेटर, उसे कहते हैं ग्राउंड ऑपरेटर, ठीक है। तो ग्राउंड ऑपरेटर जो है, ग्राउंड ऑपरेटर का मेनली इसको एज ए हैंडलिंग एजेंसी कहते हैं कॉमनली इस टूर ऑपरेटर को। तो इसका ये काम होता है कि अगर सपोज कोई बाहर की टूर कंपनी है, ओवरसीज टूर कंपनी, और वो ओवरसीज टूर कंपनी जो है, वो ओवरसीज टूर कंपनी वहां से काम सौंपती है किसको? वो ओवरसीज टूर कंपनी काम सौंपती है किसी लोकल कंपनी को। ऐसे में आपको एग्जांपल दूंगा, सपोज यूरोप से कोई ग्रुप आ रहा है इंडिया,
लेकिन परसों मैं आपको एग्जांपल दे रहा था वो वर्ल्ड टूर की, जब बहुत कंट्रीज के लिए जाते हैं टूरिस्ट, पूरे वर्ल्ड के लिए नहीं लेकिन बहुत सारी कंट्रीज उसमें कवर करते हैं। सपोज ऐसी ही पैकेज ऑपरेट करता है कोई आउटबाउंड ये टूर ऑपरेटर यूरोप का, और उसमें उसने इंडिया भी रखा है और इंडिया की बहुत सारी सिटीज रखी है, मे बी उसमें कश्मीर भी रखा है एग्जाम्पल, या फॉर एग्जाम्पल और भी कश्मीर के साथ साथ और कुछ जगह रखी है। तो अगर वो ओवरसीज टूर ऑपरेटर यहाँ पे खुद ये मैनेज नहीं करता है, क्योंकि उसको मे बी 2-3 दिन यहाँ पे किसी ग्रुप को रखा है इंडिया या 3-4 दिन, तो वो अपना ऑफिस इस कंट्री में नहीं रखता है, बल्कि वो अपने टूर्स को ऑपरेट करने के लिए यहाँ के एक टूर ऑपरेटर के साथ लाइजन रखता है। दैट मीन्स he keeps that tour operator keeps a connection with the tour operator of the place where he has to operate his tours, or which is in the package, and uses that tour operator as his handling agent at the destination. तो उसमें वो उस टूर ऑपरेटर की सर्विसेज यूज करता है अपने टूर्स को ऑपरेट करने के लिए। तो जिस टूर ऑपरेटर की सर्विसेज उस ओवरसीज टूर ऑपरेटर ने यूटिलाइज की, उसको ग्राउंड ऑपरेटर कहते हैं, और उसको डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी भी कहते हैं, और कॉमनली उसी को कहते हैं हैंडलिंग एजेंसीज। क्या कहते हैं? हैंडलिंग एजेंसीज। एंड दे आर एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग टूर्स फॉर इनकमिंग टूरिस्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ ओवरसीज ऑपरेटर्स, on behalf of overseas operators। तो ये होते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ टूर ऑपरेटर्स। तो अब सवाल ये होता है खड़ा कि ओवरसीज टूर ऑपरेटर्स को क्या जरूरत पड़ती है ग्राउंड ऑपरेटर को यूज करने की, वो खुद ही क्यों नहीं करता? मे बी आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो उसका ये रीजन है कि ये एक किस्म का, इसको बिजनेस में एक टर्म होती है, उसको कहते हैं आउटसोर्सिंग। तो ये आउटसोर्सिंग जब बिजनेस अपनी फिजिबिलिटी देखती है, अपनी एक एनालिसिस करती है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो उसमें वो किसी वक्त उनको आउटसोर्सिंग में फायदा मिलता है। For example, if that overseas tour company will keep their own office in India, say for example, they have to hire a space, they have to pay the rent of the space, they have to pay the salary of the employees। किसी के लिए ये ठीक रहता है जिनको काफी बिजनेस है इस कंट्री के साथ, लेकिन किसी टूर ऑपरेटर को बहुत लिमिटेड एक्सपोजर होता है इस कंट्री के साथ। कभी कोई टूर होता है जिसमें वो इंडिया को या उस कंट्री को यूज करे। तो ऐसे केसेस में उनको ग्राउंड ऑपरेटर ही बेटर रहता है, क्योंकि उसमें उनको तभी कॉस्ट्स इनकर होते हैं जब उनका ग्रुप जाएगा वहां पे, उसी वक्त उस ग्राउंड ऑपरेटर का काम है और उस वक्त उसको वो पेमेंट करेंगे। लेकिन बाकी टाइम उनको ग्राउंड ऑपरेटर को पैसा नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर वो अपना ऑफिस वहां पे सेट करे तो चाहे उनको वहां पे काम हो ना हो, उनका ग्रुप वहां जाए या ना जाए, उनको ऑफिस का रेंट भी देना है,
बिजली का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भरना है, उनको एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी देनी है, उनको टेलीफोन के एक्सपेंसेस भी बियर करने हैं और बाकी चीज़ें। तो इससे उनको ये एक्सपेंसेस बच जाते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस दैट वाई ओवरसीज टूर ऑपरेटर्स यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ ग्राउंड ऑपरेटर्स। दूसरा चीज़ ये है कि regulations होती है। There are various regulations of the government where there are various formalities। तो उसमें जो ग्राउंड ऑपरेटर्स होते हैं वो लोकल होते हैं, दे आर फ्रॉम द सेम प्लेस, सो दे आर वेल एक्वेंटेड एंड फेमिलियर विद सच टाइप ऑफ रेगुलेशंस कि कहाँ पे क्या ज़रूरत है, कहाँ पे किस पास की ज़रूरत है, कौन सा ऑफिस कौन से पासेस इशू करते हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को विज़िट करना है तो परमिशंस मांगने हैं, जैसे सपोज़ बॉर्डर एरियाज़ हैं तो परमिशंस की ज़रूरत है, या और कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे रेगुलेटेड ट्रैफिक रहता है, जहाँ पे रेगुलेटेड मूवमेंट रहती है, तो उसमें काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल करनी पड़ती हैं। तो वो चीज़ ग्राउंड ऑपरेटर्स बेटर हैंडल कर सकते हैं, एंड दैट इज़ वाई दिस टाइप ऑफ टूर ऑपरेटर एग्जिस्ट्स, दैट इज़ अ ग्राउंड ऑपरेटर हु इज़ ऑल्सो कॉल्ड हैंडलिंग एजेंट। तो this was about various types of tour operators. Now, let us talk about the functions of tour operators. मेन फंक्शंस क्या हैं टूर ऑपरेटर की, थोड़ा सा हमने ऑलरेडी उसकी बात की, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम डिटेल में इसकी बात करेंगे। प्लानिंग ऑफ ए टूर, that is a major function of a tour operator. A tour operator needs to plan a tour. वो टूर आइटिनरी खुद ही डेवलप करता है, जहां पे वो डिसाइड करता है कि कौन सी डेस्टिनेशंस अपनी आइटिनरी में इंक्लूड करनी है, and at which destination how much time is to be spent. So that job is not so easy because it needs a rigorous exercise, it needs a lot of knowledge to plan a tour, because planning of a tour is done in a very meticulous manner, so that, because once you are making an itinerary, you have to take care of a lot of things. You have to see that, suppose you are making an itinerary which includes say 10 or 12 destinations. So you have to make an itinerary in such a way so that it will be economically viable to plan it, to facilitate the movement of travel, to minimize the distances, to minimize the fares involved. तो ऐसी डेस्टिनेशंस उस तरीके से इंक्लूड की जाती हैं ताकि ट्रैवल टाइम मिनिमाइज हो, ट्रैवल कॉस्ट मिनिमाइज हो। तो वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं इसमें फ़्लाइट स्केड्यूल की भी काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी डेस्टिनेशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे डेली फ़्लाइट्स नहीं होती। जैसे मैं आपको लद्दाख की एग्जांपल दूंगा, लेह टू श्रीनगर डेली फ़्लाइट नहीं होती है। तो अब सपोज़ अगर कोई आइटिनरी बनी है, उसमें आपने कश्मीर भी दिखाना है टूरिस्ट को, लद्दाख भी दिखाना है, लेकिन आपको उस तरीके से
जम्मू भी दिखाना है, आपको उस तरीके से आइटिनरी डेवलप करनी है ताकि वो आपके फ्लाइट शेड्यूल के साथ भी मैच हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपको एक दिन का स्टे रखना है उनको लद्दाख में, लेकिन दूसरे दिन टूरिस्ट को कश्मीर जाने के लिए वहां से फ्लाइट ही नहीं है, तो फिर वो फ्लाइट की वजह से अटक जाए। तो यू शुड हैव information about the flight schedules so that you will plan the tour accordingly। तो ये चीज़ है। तो फिर टूर ऑपरेटर का काम होता है ट्रैवल इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करना, उसके पास एक्यूरेट अप टू डेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हालांकि ये काम जो इंफॉर्मेशन का काम ट्रैवल एजेंट का भी है, क्योंकि ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर के काम बहुत सारे मिलते हैं। तो उसी तरीके से उसको अरेंजिंग ऑफ ए टूर, वो चीज उसके डोमेन में आता है, टूर ऑपरेटर के डोमेन में। रिजर्वेशन भी उसकी एक मेन फंक्शन है। हालांकि रिजर्वेशन में फिर वो ट्रैवल एजेंसीज को भी यूज करता है, लेकिन कुछ रिजर्वेशंस वो डायरेक्टली भी लेते हैं टूर ऑपरेटर्स। तो उसके अलावा टूर ऑपरेटर की फंक्शन जो है प्रमोशन है। टूर ऑपरेटर्स प्रमोट देयर टूर्स because it is through promotion that they are able to generate demand। प्रमोशन से ही वो डिमांड जनरेट करते हैं। डिमांड जब होगी तभी काम उनका चलेगा। तो इसलिए उनको वो प्रमोशन में भी काफ़ी काम करते हैं गवर्नमेंट से मिलके। दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑल्सो एंड डू प्रमोशनल कैंपेन्स। क्योंकि प्रमोट करने से क्या होता है, एक होता है टूर को प्रमोट करना, दूसरा होता है डेस्टिनेशन को प्रमोट करना। जैसे अभी मैं आपको बात कह रहा था, देखो अपना अपना देश कैंपेन। व्हाट इज दैट प्रमोटिंग? वो कैंपेन क्या प्रमोट करती है? आप अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं। देखो अपना देश कैंपेन क्या प्रमोट करना चाहती है? के बारे में अवेयर हो जाए। और हाँ, तो प्रमोट क्या करना चाहती है वो किसी टूर ऑपरेटर को प्रमोट करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर टूर को प्रमोट करना चाहते हैं, या और कुछ? वो प्रमोट करना चाहते हैं पूरी कंट्री को, isn't it? क्योंकि जब देखो अपना देश कैंपेन में लोग जाएंगे, एनी 15 डेस्टिनेशन उसमें लिखा है, कम से कम 15 कोई भी डेस्टिनेशन को। दैट मीन्स कोई कहीं भी जा सकता है मुल्क के अंदर, isn't it? कोई कहीं भी जा सकता है मुल्क के अंदर, और जहां भी कोई जाए तो उससे क्या होगा, उससे डोमेस्टिक टूरिज्म की डिमांड बढ़ गई ना। और जब डोमेस्टिक टूरिज्म की डिमांड बढ़ जाएगी तो उसका बेनिफिट किसको आएगा? उसका बेनिफिट, यस मोहसिन?
वेरी गुड, कंट्री को आएगा। और फिर कंट्री के अंदर, हाँ, कंट्री के अंदर किसको डायरेक्टली उसका बेनिफिट आएगा? जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, वेरी गुड। तो दैट मीन्स बहुत सारे लोग उससे बेनिफिट अवेल करेंगे, लेकिन डायरेक्टली उसका बेनिफिट डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स को आएगा, इजंट इट? क्योंकि वो जो काम है वो हैंडल तो करना है ना टूर ऑपरेटर को ही, एट वन पॉइंट और द अदर। पीपल हु आर गोइंग टू ट्रैवल, दे हैव टू यूटिलाइज अवेल द ट्रैवल सर्विसेज, and those travel services are offered by tour operators or travel agents. So that means how promotion helps. अगर प्रमोशन हो जाए तो डिमांड, सपोज देखो अपना देश कैंपेन से डोमेस्टिक टूरिज्म की डिमांड बढ़ गई। इस वक्त तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इस वक्त तो दूसरा एक सिनेरियो है, इस वक्त तो किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं है, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी पीपल आर स्टेइंग इन देयर होम्स. But what I say is that this phenomena is actually going to raise the demand for domestic tourism. And this is how promotion helps. And this is why promotion is also one of the main jobs, tasks, functions of a tour operator. Then another function of tour operators is that they take care of glitch. Glitch means glitch. It means that something where there is some problem. जैसे इस वक्त हम बात करेंगे, इस वक्त ग्लिच है कोविड-19, क्योंकि इसकी वजह से अब कोई टूरिज्म एक्टिविटी इस वक्त नहीं होगी। लेकिन अब इस वक्त टूर ऑपरेटर्स डिस्कस कर रहे हैं। आई वॉज फ्यू डेज बिफोर आई वॉज अटेंडिंग ए नेशनल वेबिनार, ऑनलाइन ही कर रहा था मैं वो अटेंड, और उसमें कुछ होटेलियर्स थे, बाहर के टूर ऑपरेटर्स थे, तो वो यही बात अब कह रहे थे कि अब कैसे करेंगे रिमूव इन ग्लिचेस को, व्हाट शुड बी डन। तो उसमें एक होटेलियर था, तो उसने बताया, फिर उसके रेस्टोरेंट्स भी हैं इंडिया में काफ़ी, तो उसने ये सजेशन दी कि आप सपोज हम जिस रेस्टोरेंट में हमको 150 लोग खाना खाते थे, तो अब उसकी कैपेसिटी रिड्यूस करनी है, अब वो 50 सीटर रेस्टोरेंट बन जाएगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है। सपोज अगर 150 सीटर रेस्टोरेंट था, नाउ इट विल हैव टू बी ए 50 सीटर रेस्टोरेंट, क्योंकि अब उसमें स्पेसिंग बढ़ानी है। दूसरी सजेशन दे दी उसने कि हमको अब एक चीज करना है कि वहां पे डिजिटल सॉर्ट ऑफ मेन्यू रखेंगे। अब वेटर नहीं आएगा, वो F&B सर्विस पर्सनल विल नॉट कम टू द गेस्ट टू टेक ऑर्डर, बट व्हाट विल बी डन, नाउ देयर विल बी ए डिजिटल मेन्यू, एंड ऑन दैट डिजिटल मेन्यू क्या कह रहा था मैं आपको कि ये जो डिजिटल मेन्यूज रखेंगे, ताकि जो गेस्ट हैं वो डिजिटली अपना ऑर्डर प्लेस करे कि उसको क्या चीज़ लेना है, और वो उसको डिजिटली प्लेस करे ऑर्डर को। और फिर उसके बाद क्या होगा, इनफैक्ट वो डिजिटल मेन्यूज उसको, अगर वो होटल में स्टे कर रहा है गेस्ट, उसके रूम में ही होंगे, और वो वहाँ पे उसको टेबल नंबर भी लिखा होगा डिजिटल मेन्यू पे कि कौन सा टेबल वहाँ पे रेस्टोरेंट में उसके लिए रखा गया है, और वो ऑर्डर प्लेस करेगा। तो फिर उसको उसी डिजिटल मेन्यू पे एक बेल आ जाएगी कि आपका ऑर्डर रेडी है, 5 मिनट में आप ऑर्डर मतलब खाने के लिए रेस्टोरेंट में आइए। तो तब तक वो जो फूड एंड सर्विस पर्सनल है वो वहां पे टेबल पे वो सजा के रखेंगे, और जब ऊपर से गेस्ट आ जाएगा तो वहां पे उस टेबल पे बिल्कुल खाना लगा होगा, और गेस्ट F&B सर्विस पर्सनल को देखेगा ही नहीं।
वो उसने उस दौरान रखा होगा वहां पे, एंड वंस द गेस्ट विल रीच देयर ही विल टेक द फूड, एंड आफ्टर टेकिंग द फूड ही विल लीव द प्लेस। तो जब वो वहां से उठेगा तो उसके बाद F&B सर्विस पर्सनल वो वहां से उठाएंगे। तो ये एक सजेशन थी कि दिस इज हाउ वी कैन मैनेज इट अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस, एक रेस्टोरेंट को कैसे मैनेज करेंगे। तो इसी तरीके से होटल में कि कैसे जो पॉइंट ऑफ इंटरफेस मिनिमाइज करेंगे। सपोज जो इनफैक्ट आप बात कर रहा था एक होटेलियर, ही वाज टेलिंग दैट नाउ वी हैव टू गो फॉर रोबोटिक रिसेप्शन, दैट मीन्स ऑटोमेटेड रिसेप्शन। जैसे कि पहले सपोज रिसेप्शन पे रिसेप्शनिस्ट होता था और ग्रीट करता था गेस्ट्स को, अब वहां पे वो चेक इन प्रोसेस ऑटोमेटिक होनी चाहिए। ये सजेशंस थी ताकि वहां पे ऑटोमेटिक चेक इन हो गेस्ट का और फेस टू फेस और पॉइंट ऑफ इंटरफेस पे कनेक्शन नहीं हो। तो हालांकि ये चीज तो थोड़ी देर के लिए जब तक ये क्राइसिस है इस एपिडेमिक की, लेकिन ये तो एफोर्ड भी नहीं कर सकता है एक आम होटेलियर, बिकॉज इट कैन बी एफोर्डेड बाय big hotel chains like 5-star deluxe hotels. They can go for robotic reception and minimize these things. Suppose washrooms में हर कोई जो नलका है वो सेंसर बेस्ड होना चाहिए कि टैप को हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़े, हाथ ले वहां पे तो पानी आ जाए। फ्लश सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक हो ताकि वॉशरूम यूज करने के बाद वो खुद ही फ्लश हो जाए। तो ये सारी चीजें इस वक्त सजेशंस आ रही थी ताकि कैसे ऐसा मैकेनिज्म हो डेवलप कि होटल भी चले और इस एपिडेमिक में होटल भी रन हो। तो दिस इज एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ ग्लीच, मतलब कुछ ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन जो है प्रॉब्लम्स है उनके साथ कैसे डील करना है। तो इसमें क्योंकि टूर ऑपरेटर्स को तो देखना है कि अगर ये कंडीशन ज्यादा देर रही तो, लेकिन उनको ये भी देखना है कि उनका काम भी चले। फिर अगर पेंडेमिक भी है लेकिन काम उस तरीके से चलाए ताकि पेंडेमिक उसका असर काम पे न हो और काम चलने से वो बीमारी न बढ़े। ऐसी चीजें करे जिससे मिनिमाइज हो, जिससे सारी प्रिकॉशंस हो। तो दैट इज एक अनदर thing which tour operators are engaged in. They are engaged in that if there is any obstruction problem, they try to find the means of how to overcome such obstructions. Okay? So I think with this we conclude today's session. If you have any question, any more clarification you want, now it is open for discussion. You can unmute your microphones and you can talk. जी सर। हाँ बताइए शबनम। सर वो जी सर, जैसे सर आपने अभी ये होटल्स का बताया कि उसमें ऑटोमेटिक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, तो सर ऐसे मतलब हमारे एग्जाम्स हैं या बहुत ही स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटी राइट, तो सर मतलब वो हो सकते हैं ना ऐसे सर, जैसे सर एग्जाम्स हैं या क्लास होंगी, बिल्कुल, तो सर वो हो सकते हैं ना मतलब क्लास में स्पेस रखेंगे, हाँ स्पेस रखेंगे, स्टूडेंट्स दूरी पे बैठेंगे और वो अच्छे से मास्क का यूज करेंगे और ग्लव्स का यूज करेंगे। राइट। तो सर जो टीचर्स होंगे वो भी जब मतलब उनको पेपर देंगे या उनको स्टडी के टाइम वो भी दूरी पे खड़े रहेंगे और उनको अच्छे से पढ़ा सकते हैं, उनको अच्छे से स्टडी वहाँ पे हो सकती है। वो भी ग्लव्स का यूज कर सकते हैं, मास्क का यूज कर सकते हैं। और सर अगर हर कोई स्टूडेंट्स मतलब अपने पास सैनिटाइज रखेगा तो सर उस टाइम पे ये पॉसिबल है कि हमारी क्लासेस अच्छे से हो सकती है। राइट, जो एग्जाम है वो भी हो सकते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड सजेशन। राइट, दिस इज नाइस थिंग दैट इज वी कैन डू इट. We can do it in the future course of time, that we can see that how we can engage in
physical classes despite of the pandemic, but we have to take every necessary precaution. That is, suppose we have a seating capacity of say 20 students in the class, now we can make it capacity of Yes, sir. 8 to 10 students, isn't it? And we can maintain the social distance norms, and we can keep ourselves well masked so that we will prevent the epidemic to spread, and also we can simultaneously do our work, isn't it? So this is actually how now things will be taking shape in future, in the coming days, isn't it? Because now there may be the exploration of some alternatives, that is how can we live with this, क्योंकि ये जो है मे बी ये ज़्यादा टाइम भी चलेगा, तो लेकिन हमको ये भी देखना है कि हम कैसे इस सूरत हाल में भी कैसे हम बहुत एहतियात से काम कर सकेंगे, isn't it? जी सर. वेरी गुड, आपने अच्छा सोचा कि हाउ वी कैन रेप्लिकेट इट इन द एकेडमिक सेक्टर. दिस इज पॉसिबल, ये भी मुमकिन है, क्योंकि अवेयरनेस तो अब हम में आ रही है दिन ब दिन, है ना. पहले हमको ये आइडिया नहीं था, जैसे कि हम पहले सपोज हम किसी से मिलते थे तो हम ज़रूरी हैंडशेक करते थे, अब हमने सीखा कि वी डोंट हैव टू शेक हैंड्स, वी हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग. ये चीज़ तो सीख लिया. जी सर. या मास्क का यूज़ करना तो अब हमने सीख लिया. पहले मास्क लगा नहीं सकते थे क्योंकि आदत ही नहीं थी, लेकिन अब मास्क पहनने की आदत हमको हो गई अब. तो ये चीज़ें जब हमने सीख ली तो अब हम इस सूरत हाल में भी आहिस्ता आहिस्ता से काम कर सकते हैं. जी सर. आई थिंक सर इसमें किसी मैकेनिज्म का भी मतलब नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सर ये हम खुद ही कर सकते हैं मेंटेन. हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें मेन चीज जो जरूरत है वो है अवेयरनेस. ये पता होना चाहिए कि जी हमको सर. सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है. सपोज हम अगर दुकान पे जाए, वहाँ पे 4 लोग हैं, हम वहाँ पर पीछे रहें और जगह मेंटेन करें ताकि हम दूसरे के बिल्कुल करीब न जाए, isn't it? जी सर. तो जी सर. ये चीज़ें हम अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम पूरा सीख लेंगे. तो और इस सिस्टम के साथ फिर कंफर्टेबल, क्योंकि फिर जब आदत हो जाती है किसी चीज़ की तो फिर ऑटोमेटिकली कंफर्ट आ जाता है, फिर वो प्रॉब्लम नहीं लगती, है ना. ओके, एनीबॉडी एल्स? ओके, नाउ साकिब, now I have a student from the 4th semester, because if 6th semester students want to stay, they can remain with us. अगर आप exit करना चाहोगे तो you can. So yes Sakib, I was very happy to see your email. आपने वो अपना जो वो प्रोजेक्ट के रिलेटेड आपने मुझे भेजा था PDF, तो मैंने उसको देखा और अच्छी तरह से आपने काम किया है उस पर, वो वर्थ एप्रिसिएशन है. तो डेटा भी आपने कलेक्ट किया है ठीक तरह से, सेकेंडरी डेटा. लेकिन उसमें अब एक चीज़ है जो मैं आपको सजेस्ट कर लूँगा यहाँ पे, वो ये है कि उसका जो जब चैप्टराइजेशन आप करते हैं तो आपको जो वो डेटा है आप उसको अच्छी तरह के से थोड़ा सीक्वेंस, उसका मतलब डेटा तो वही है, उसी को थोड़ा सीक्वेंस में चेंज करनी है, मतलब आगे पीछे जैसे लाना है, जिससे क्योंकि आपका जो पहला चैप्टर है वो क्या बनेगा, इंट्रोडक्शन, isn't it? तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में एक सीक्वेंस, क्योंकि उसमें आपके जो रिपोर्ट्स है ना उसमें, तो उसमें आप बिल्कुल अच्छी तरह से देखना वो डेट्स के हिसाब से, तो फिर उसी सीक्वेंस के हिसाब से आप उसको जोड़ना. और उसमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा कनेक्टिविटी रखनी है. सपोज आपने ऊपर एक पैराग्राफ लिखा, तो जब दूसरा पैराग्राफ सपोज आपने उसमें डाला है, लिखा है, तो उसके साथ आप देखना कि पहले पैराग्राफ की कनेक्टिविटी से मत ज्यादा बेटर है कि तीसरे पैराग्राफ की कनेक्टिविटी से, पहले पैराग्राफ की कनेक्टिविटी दूसरे से ज्यादा तीसरे से मिलती है, तो आप दूसरा तीसरे की जगह ले सकते हैं, तीसरा दूसरे की जगह ले सकते हैं. आपको समझ में आ रही है मेरी बात? तो उसको हम कहते हैं सीक्वेंसिंग. तो वो थोड़ा सा आप उसमें देखना.
और फिर ऑटोमेटिकली उसमें आपका जो इंट्रोडक्शन चैप्टर बहुत ब्यूटीफुल बना है आपका, दैट इज वो अच्छा मतलब आपने बनाया है। वो थोड़ा सा सीक्वेंसिंग आप उसकी करना, आपको एक बार फिर उसको पढ़ के आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि आप खुद ही लगेगा दूसरी बार या तीसरी बार पढ़ने से एक सीक्वेंस कैसे मैच होता है। आपको लगेगा कि ये पैराग्राफ यहाँ पे ज़्यादा सूट होगा और ऊपर वाला पैराग्राफ यहाँ पे ज़्यादा सूट होगा, ऐसे। तो उससे आपका चैप्टर जो है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आपको लगेगा कभी कि पैराग्राफ और पैराग्राफ की सीक्वेंसिंग कनेक्शन नहीं मिलता है, तो उसकी कनेक्टिविटी के लिए आप एक लाइन ऐड कर सकते हैं बीच में। Got it? That time what can be done, a line can be added to establish the connectivity. तो वो चीज उसमें आप देख सकते हैं उसमें, जो कि काफी अच्छा रहेगा उसमें, राइट? और I will be trying to open it now. We have other students, they will be also see it. मैं कोशिश करूंगा आपके साथ स्क्रीन शेयर करने की, या okay, I will be sharing my screen with you. Are you able to see my screen? Yes, sir. Okay. Now it is for other students. आप देखो कैसे, क्योंकि 4th सेमेस्टर में इसने अच्छा अटेम्प्ट किया है। मतलब साकिब को पहला एक्सपोजर है रिसर्च का, प्रोजेक्ट का। ही इज इन द 4th सेमेस्टर बट स्टिल ही हैड डन अ वेरी गुड अटेम्प्ट। आई वाज वेरी हैप्पी। तो यहाँ पे इसने अच्छी तरह से अनरेस्ट इन द कंट्री हैज अ सीवियर इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। अब देखो यहाँ पे आपने स्टार्ट किया है ना, Yes, sir. unrest in any country is a severe effect on the economy of that country, isn't it? तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले आपको देना है अपनी जगह का डिस्क्रिप्शन। Yes, sir. मतलब आप कंट्री की अनरेस्ट का एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, फिर उसके बाद इसका इफेक्ट क्या होता है। Yes, sir. तो फिर आप इसमें किसी कंट्री वाइड जो अभी जो कोई कंट्री जिसमें ना पूरी कंट्री इफेक्ट हुई हो पास्ट में, उसका भी आप दे सकते हैं जिक्र। उसके बाद आप आ सकते हैं कश्मीर पर। Yes, sir. अब सपोज यहाँ पर देखो आप, ये जो है यहाँ पे आपको फिर कनेक्टिविटी लिंक करनी है। जैसे ये है ना यहाँ पे अटैक्स ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस, फिर एंड पब्लिक प्रॉपर्टीज का यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं लगता है। Yes, sir. यू आर ऑन दिस पेज। Yes, sir. तो है ना ये मिसमैच यहाँ पे, तो इसको आप सीक्वेंस चेंज करके इट विल बी टेकन एट द राइट प्लेस। Yes, sir.
और सपोज आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि रिसर्च में हम थर्ड पर्सन लैंग्वेज यूज करते हैं। यहाँ पे आपने लिखा है ना, नाउ इट इज नेसेसरी फॉर यू टू नो, Yes, sir. नाउ इट इज नेसेसरी फॉर यू टू नो, तो ये यहाँ पे आता है सेकंड पर्सन में। तो अगर आपने ग्रामेटिक्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड का यूज पता हो, तो हम रिपोर्ट्स में यूज करते हैं थर्ड पर्सन। Yes, sir. तो थर्ड पर्सन में सीधा यहाँ पे फॉर यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सीधा आएगा नाउ इट इज नेसेसरी टू नो द इम्पैक्ट ऑफ अनरेस्ट ऑन होटल इंडस्ट्री इन कश्मीर। तो फॉर यू लिखने की जरूरत नहीं है। No. तो थर्ड पर्सन होता है कि जहां पर हम आई, यू, मी का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन होते हैं यार। तो वो एक्चुअली प्रोजेक्ट लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसमें हम जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, तो उसी तरीके से आप ऐसे जो फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन है उसका यूज ऑफ कम कर सकते हैं, राइट? Yes, sir. Yes. आप सपोज यहाँ पे है ना, मुंबई का आपने दिया है, ये मुंबई का जो जिक्र है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे लाइन ऑफ कनेक्टिविटी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ये लगता है यहाँ पे कश्मीर का जिक्र नहीं हो रहा है, मुंबई का हो रहा है। Yes, sir. ये पेज आप देख रहे हैं यहाँ पे, Yes, sir. तो यहाँ पे सपोज आप एक लाइन ऑफ कनेक्टिविटी यूज कर सकते हैं कि द इम्पैक्ट वाज आल्सो फाउंड ऑन मुंबई बेस्ड ताज ग्रुप ऑफ होटल्स। ये एक्चुअली ताज ग्रुप जो है मुंबई बेस्ड है, क्योंकि टाटा ग्रुप की उसका बेस वहां पे है। तो वो आप यूज कर सकते हैं ऐसा कनेक्टिंग लाइन। ऐसे लगता है, ऐसे ये रिपोर्ट में रखेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। गॉट इट? Yes, sir. तो कीप इट अप, आपका काम अच्छा है। Yes, sir. Cool. ओके, अच्छा। So with this, we conclude today's session. Take care. Thank you, sir.